Good evening, everyone. Welcome to the third class of the Principal and Vice Principal series that we have been doing. And today we are going to talk about this topic called National Education Policy 2020. Um, During the session, I would request everyone to keep your mics on mute mode. In case you wish to speak, you can unmute it anytime you want. यू डोंट नीड एनी परमिशन, कोई कभी भी बोल सकता है अगर कुछ ऐसा लगता है कि बोलना है तो। आज के सेशन में हम लोग मेन जो आइडियाज़ हैं, कंटेंट है, उसी की बात करेंगे फिलहाल। और क्वेश्चंस मतलब जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आज नहीं कर पाएंगे बिकॉज टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। सो आई विल ट्राई कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हम कल कर लें इस पर टॉपिक पर, और जो अभी तक हमने किया उस पर भी अगर एक दो करके, तो जिससे हमारा रिवीजन होता रहे। So before I begin, if any one of you has something to ask or speak about, you are most welcome. Otherwise, we may start with the discussion. किसी साथी को कुछ बोलना है? ममता मैम कुछ बोलना चाहती हैं? Yes, good evening, sir. गुड इवनिंग ममता मैम, बोलिए। Your sessions are really meaningful and very insightful. I'm getting a great help because I belong to a private school. So there are so many things probably I was not aware of. So I'm sure I'm going to learn a lot further. However, apart from these sessions, I would like to know which one comprehensive book covering the entire syllabus or maybe a set of book is useful for me to practice in my odd hours. Okay, I will discuss about this maybe on WhatsApp. I'll share with some books with you. And as I had discussed that there's a group of friends of mine who are professors actually at three different universities, DUBHU and Lucknow. One boy is there. So they are preparing some notes. It will take 2 3 days. I will give you update about that. I'm confident about that. In case you wish to buy that, you can go ahead with that also. Yes, But sir. Sure, sir. I I do would like not to. have, I do not have clarity about that right as of now. I mean, 100% clarity. It is happening. I know. I'll be able to let you know tomorrow most likely. So Okay, thank sir. you Thank you. for the compliment. Anyway, we have two Garima Pandey, and who's Garima SH. Can we? So, on this side, Garima Sharma. Hi, Ravi sir. Hi, Garima Pandey. Hi, Garima good evening, SH. sir. Good evening. Garima SH. I do not know. Hello. Yeah. Sir, am Hi. I audible? Yes, you are. Myself, Garima Sharma. Okay. I'm looking for. All right. Fine. You may introduce to yourself to me later at some on Okay. maybe on chat or something. Let us discuss the topic because we have limited time, and this is the time, the prime time when people watch news, right, in the evening. So we are busy on preparation. Let's talk about the topic quickly. Okay. So dear friends, with your permission, I would like to start. सबसे पहला पॉइंट ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं और बहुत सारी क्लासेस हमने, लेक्चर्स हमने अटेंड भी किए हैं, हमारे जो सेशंस होते हैं उनमें भी होते हैं। बट समहाउ हमारे मन में एक क्वेश्चन रहता है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या चीज़, क्योंकि हम ये जानते हैं, हमें ये बताया जाता है कि देखो पहले क्या होता था कि बच्चे को सिर्फ याद करा दिया जाता था, अब बच्चे को समझाया जाता है, वगैरह वगैरह, ढेर सारी कहानियां हमें बताई जाती हैं। पर एग्जैक्टली कहाँ से आया, क्यों आया, और इसका हिस्ट्री क्या है, एजुकेशन पॉलिसी की हिस्ट्री क्या है इंडिया में, आज़ादी के पहले की है या आज़ादी के बाद की है। फिर ये कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब बनी, कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर में क्या है, कौन से चैप्टर हैं जो हमारे काम के हैं, कौन से हैं जो हमारे काम के नहीं हैं। ये पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो मैंने जो प्रयास किया है वो ये है कि I have tried to think what UPSC may ask, and accordingly, this entire session has been planned. So there are six things like that. Six I have written. Actually, seven are there. तो ये जो
6 या 7 चीजें हैं, इनके इर्द गिर्द ही घूमती हुई पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, और अगर हम इनको एक एक करके समझ लेंगे तो हमें काफी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो पॉलिसी 2020 में आई है, ये क्या प्रपोज करती है, ये क्या चेंज करना चाहती है, ऐसा क्या कर रही है जो पहले नहीं हो रहा था, या हो रहा था तो उसको अलग तरीके से कैसे कर रही है। दूसरा कि इसका कॉन्सेप्ट, राइट, ये जो कॉन्सेप्ट है कि इसमें FLN क्या है, ECCE क्या है, ये जो हम अक्सर बात करते हैं SEDG, ये क्या होता है, 5+3+3+4, हम बात करते हैं कि नया स्ट्रक्चर है, ये नया स्ट्रक्चर है, हमें पता है ये क्यों है, और इसमें और ऐसा क्या ये करता है जो पहले नहीं हो रहा था, जो हमारा 5 प्लस आपका 10+2 था, है ना, 10+2 हम लोग करते थे जो, तो उसमें क्या ऐसा था जो नहीं होता था जो अब होने लगा है। प्लस एक पॉइंट ये है कि ये जो हम पॉलिसी बना करके लाई है, हमारी गवर्नमेंट बना के लाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिसको ज्यादातर स्टेट्स ने हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट वो स्टेट्स जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अपोजिट पार्टी की सरकारें हैं, और ज्यादा उनमें एनिमोसिटी है, किसी कारण से उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे कर्नाटका अपनी नई खुद की एक एजुकेशन पॉलिसी बना रहा है, कर्नाटका जो कि जिसमें आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी रूल करती है और सेंटर में बीजेपी। वैसे ही तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु एक बात को लेकर के हमेशा से, तमिल जो पॉलिटिक्स है उसमें आपको पता है कि तमिल लैंग्वेज को लेकर काफी ज्यादा वो लोग सेंसिटिव रहते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है और क्या कठिनाइयां हैं वो एक अलग विषय है, बट तमिलनाडु में भी इसका थोड़ा विरोध हुआ है, और वहां पर भी वो अपनी पॉलिसी वगैरह के बारे में बातें कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे कहाँ कहाँ दिक्कतें आई हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम इस पॉलिसी को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को स्कूल लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो स्कूल लेवल पे ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट होती कैसी है, क्योंकि जो टीचर्स 2018-19 में पढ़ा रहे थे और आज भी पढ़ा रहे हैं, वो तो कहते हैं भाई हमें कोई बहुत बड़ा फर्क दिखता नहीं, 18-19 में भी वही था, आज भी वही हो रहा है, तब भी हम क्लास में जाके पढ़ा के आते थे, अब भी हम क्लास में जाके पढ़ा के चले आते हैं, तो क्या फर्क पड़ गया। तो इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। इंस्टीट्यूशंस में जैसे NCERT आपका है, SCERT है, इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे परख एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर आया है, जिसके बारे में डिटेल में बात करना जरूरी है, क्योंकि परख पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। SSSA स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की परिभाषा बदल गई है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बदल गई है, और वो भले ही आपके विद्यालय में प्रैक्टिस अभी ना हो रहा हो, बट आगे आने वाले समय में होगा प्रैक्टिस। प्लस क्योंकि हम प्रिंसिपल के रोल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द जॉब ऑफ प्रिंसिपल, और ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन हो सकता है, तो प्रिंसिपल का रोल है क्या, इस पूरी NEP में उसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए क्या कठिनाइयां हैं, ये कुछ बातें हैं जो हम करने वाले हैं अगले 1 घंटे में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी में हम जब ये एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमसे क्वेश्चन किस तरीके का होगा। एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई ये 5+3+3+4 क्या है, FLN क्या है, परख क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या होती है, SEDG क्या होता है, स्कूल कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, क्या जो पहले था वही है या अब बदल गया है, और ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ये क्या चीज होती है। एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है, और अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि यूपीएससी हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा, तो सॉरी टू से बट शायद हम लोग थोड़ा सा यूपीएससी से पीछे चल रहे हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस वो नहीं पूछेगा या कम पूछेगा। दे आर बेसिकली गोइंग टू टेस्ट योर पावर ऑफ एनालिसिस, एंड दे आर गोइंग टू नो कि आप चीजों को समझते कैसे हैं। तो बेसिकली उनके क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं कि हम 5+3+3+4 क्यों लेकर के आए, FLN की जरूरत, परख की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। ये जो NEP है ये कौन सी एजुकेशनल एक्सक्लूजन की बात करता है, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस और क्लस्टर्स जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है और क्यों है। सो बेसिकली टीचर का, जैसे असेसमेंट में टीचर का क्या रोल है, एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन का आंसर आया, टीचर ने इवेलुएट कर दिया,
वो काम तो कंप्यूटर भी कर सकता है। टीचर का क्या रोल है, राइट? टीचर का जो रोल है असेसमेंट में, उसमें एनईपी 2020 में क्या चेंजेस आए हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे यूपीएससी उम्मीद करेगा कि आप बता पाएं, सोच पाएं, और वो जो क्वेश्चंस बनाएगा वो ऐसे ही बनाएगा कि आपके अंदर फैक्ट के साथ साथ एनालिसिस की पावर हो। सो इन दिस सेशन वी विल ट्राई टू रिप्लाई सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक ये देखते हैं कि ये जो हमारा एनईपी का टॉपिक है, इसमें कौन से सब टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से ऐसे हैं जो यूपीएससी के लिए रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। सो मैंने आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिया है, आप देखेंगे ये अराउंड 10 टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे नीचे हायर एजुकेशन है, जिसपे सिर्फ सिंगल स्टार बना हुआ है या सिंगल डॉट है, जो भी आप कह लीजिए इसको। हायर एजुकेशन जो है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे कम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चरल चेंज आया है ना, जिसमें कॉन्सेप्ट और एज मैपिंग की बात की गई है, जिसको हम डिटेल में करेंगे, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। along with 5+3+3+4 FLN और ECCE, आपका करिकुलम एंड पेडागोजी जो चैप्टर 4 है, आपके NEP 2020 का असेसमेंट में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, इक्विटी और इंक्लूजन क्या होता है, जिसमें SEDG जेंडर इंक्लूजन वगैरह है, और स्कूल की गवर्नेंस में का क्या इम्पोर्टेंस है। ये जो शुरू के आपके 6 टॉपिक्स हैं, ये आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हमारा फोकस ज़्यादातर इसी पर होगा। सो the 10 facts that you must know about the NEP 2020, जिन पर हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं सबसे ज़्यादा, वो मैं आपको समराइज करके यहाँ बता रहा हूँ, और आगे चल के हम इसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करके भी देखेंगे। पहला तो ये डेट याद रखने की है कि NEP 2020 was approved on जुलाई 29, 2020। तो जुलाई का महीना निकल चुका है और 6 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सेकेंड कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने रिप्लेस किसे किया, 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को। तो ये जो अभी हम NEP बोलते हैं, इसको 1986 वाली को NEP नहीं बल्कि NPE बोलते थे, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, और ये 1986 में बनी थी इसके पहले, और इसको 1992 में लगभग 6 साल बाद एक बार मॉडिफाई किया गया था। उसके अलावा 5+3+3+4 की बात करेंगे डिटेल में, ECCE और FLN मैंने कहा क्या है और क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है रोट लर्निंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे। अभी SCERT दिल्ली में काफ़ी CBP के कोर्सेज करवाता रहा है, जो आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, कितना इफेक्टिव है वो एक अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल कम से कम हो तो रही है। रोट लर्निंग को कैसे कम किया जाए उसमें बातें की गई हैं। फिर करिकुलम, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। करिकुलम को होलिस्टिक किया गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी किया गया है, एक्सपेरिमेंटल और फ्लेक्सिबल। ये जो वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं, होलिस्टिक, मल्टी डिसिप्लिनरी, एक्सपीरियंशियल एंड फ्लेक्सिबल, these are not just words, they have very deep meaning। एंड अगर हमें लगता है कि चलो हमने सुन लिया और इसको इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, तो वी मे बी ट्रैप्ड, चाहे वो राइटिंग एग्जाम में हो या फिर इंटरव्यू में हो। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि होलिस्टिक का क्या मतलब है ना, और ये कैसे अप्लाई हो रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। फिर लैंग्वेज की बात करते हैं। अब लैंग्वेज का जो आइडिया है, आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला पहले भी था और अभी भी इसमें भी 3 लैंग्वेज फार्मूला है। तो पहले वाले में और वाले में क्या फर्क आया है ना, और क्यों फर्क आया, ये भी हम देखेंगे। असेसमेंट में परख क्या है, और एक और बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, समथिंग कॉल्ड होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, SEDG। कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा आगे पता चल जाएगा। और रोल ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें एकेडमिक रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल और लीडर के रूप में रोल। सो ये जो 10 फैक्ट्स हैं आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए और इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं।
तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसने जो अप्रोच में चेंज किया है वो बड़े बड़े चेंजेस क्या है, उनको एक हम समरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की का प्रयास करते हैं। जिस चीज का दावा है, अब ये कितना सक्सेसफुल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। आप देखिए तो 2020 में आया है, 6 इयर्स हुए हैं, 6 इयर्स में कुछ चेंजेस तो आए हैं, बट इसमें टारगेट्स क्या रखे गए हैं और हम टारगेट में कहाँ तक पहुंचे हैं, आगे मैं इसकी भी बात करूंगा कि हम अभी कहाँ पर खड़े हैं, हमने क्या सोचा था, क्या हम वहाँ पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। So in the traditional approach, we had learning by rote learning, याद करना। ट्रेडिशनल अप्रोच को कहते हैं कि वो टीचर सेंटर्ड था, टीचर क्लास में आके अपनी बातें पढ़ाता चला जाता था, बच्चे भी क्वेश्चंस करते थे, ऐसा नहीं करते थे। बट अभी क्या है कि बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होने चाहिए, बच्चे ज़्यादा बोलें, और या फिर एक्टिविटीज ऐसी प्लान हो कि उसमें बच्चे ही इन्वॉल्व हो, ऐसी बातें चल रही हैं। इसके पहले टेक्स्ट बुक की बात होती थी कि टेक्स्ट बुक आपको क्लास में लेकर के ही आना है, टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाई होनी है। अब बियॉन्ड टेक्स्ट बुक की बात हो रही है कि टेक्स्ट बुक हो या ना हो, वो तो आपको घर पे खुद ही पढ़ना है, या स्कूल में टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड टीचर पढ़ाएगा या डिस्कशन करेगा। पहले क्या था, सब्जेक्ट बाउंड्रीज रिजिड थी, मतलब कोई बंदा अगर इकोनॉमिक्स के साथ मैथमेटिक्स पढ़ना चाहे या केमिस्ट्री पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता था। आज के टाइम में वो सब पॉसिबल है एनईपी 2020। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी पहले क्या था कि आप बच्चों से उम्मीद की जाती थी कि वो ढेर सारे नोट्स बनाएंगे और नोट्स को याद कर डालेंगे। अभी जो एनईपी 2020 है वो कहता है कि आप कितना भी याद कर लो उससे फर्क नहीं पड़ता, याद करना बहुत बेसिक चीज है, उसको अप्लाई करने की बात है, आप उसको रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। पहले एक ही एग्जाम होता था सभी के लिए, वन साइज फिट्स टू ऑल। अब एनईपी 2020 में बात चल रही है कि हर एक व्यक्ति का अलग एग्जाम होगा। कहने का मतलब ये नहीं कि सबके लिए अलग पेपर बनेगा, इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति को एक बच्चे का फ्लेक्सिबल एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड या प्रोग्रेस कार्ड बनेगा, और उसमें उसको कम से कम 10 या 15 पैरामीटर्स पे मापा जाएगा, और उन 10-15 पैरामीटर में हो सकता है कि कोई बच्चा किसी पैरामीटर में बहुत आगे हो और कोई दूसरा बच्चा किसी दूसरे पैरामीटर में आगे हो। तो अर्लियर इट वाज लाइक, अगर हमारा बच्चा बहुत अच्छे से रट लेता है, समझ लेता है और उसको कॉपी कराता है, तो उस स्किल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी और बहुत सारी अदर स्किल्स को हमने किनारे छोड़ दिया था। NEP 2020 is saying that we will include all those skills which have been left behind and we will use them. तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्सेप्चुअल और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की बात हो रही है, लर्नर को सेंटर में रखा गया है, होलिस्टिक अप्रोच की बात हो रही है, एक्सपीरियंस करके लर्न करना, यानी सिर्फ लर्न नहीं करना है, उसको आपको एक्सपीरियंस करके लर्न करना है। मल्टी डिसिप्लिनरी हमने बात किया अभी, और होलिस्टिक डेवलपमेंट आगे भी बात करेंगे वगैरह, तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब ये जानना जरूरी है कि एनईपी 2020 तो आया, तो इसके पहले क्या था और उसके पहले क्या था और सबसे पहले क्या था, ये हमें पता होना चाहिए, ब्रीफ में पता होना चाहिए, और हमें दिमाग में आइडिया तो होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक समरी मैंने आपके सामने रखी है, ये इसके बारे में आपसे बात करूंगा, और फिर मैं इसमें जितने भी हैं उनके महत्व के क्रम में, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको थोड़ा ज्यादा समय देते हुए, और जो बहुत कम महत्वपूर्ण है उसको कम समय देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप देखें तो 1813 वो समय था जब इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, और 1813 में इंडिया का पहली बार एजुकेशन के बारे में बात होती है ऑफिशियली, और इस एक्ट को कहा गया था चार्टर एक्ट। 1813 में चार्टर एक्ट आया था, ये पहला ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन में किया गया इंटरवेंशन था। ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी कह लीजिए आप। 1813 के बाद 35 में बहुत ही फेमस टॉमस बेबिंगटन मैकॉले, मैकॉले के मिनट्स थे, मैकॉले के मिनट्स के बारे में बात की गई आए, जो जिन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बहुत ड्रास्टिक चेंज करने की बात की और चेंज किया भी। 35 से आगे बढ़ेंगे तो 54, 1854, ये वुड्स डिस्पैच है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे बात करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में काफी परिवर्तन करने की वकालत की और किया। 1882 आता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का जो मेन उद्देश्य था वो प्राइमरी एजुकेशन था। हंटर कमीशन प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात करता है। उसके बाद 1904, लगभग आप मान लीजिए 18 4 22 साल के बाद आता है आपका 1904 इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। ये हायर एजुकेशन के बारे में था। तो जैसे हंटर कमीशन है वो प्राइमरी के बारे में था, तो 1882 वाला इंडियन, ये आपका जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ये हायर एजुकेशन के बारे में बात करता है। फिर 1917 1919 एक और कमीशन आया जिसका नाम था सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के में रिफॉर्म लेकर के आता है। 1919 के बाद 1948-49 में आ जाइए, तो ये जो आज़ादी के पहले था कॉलोनियल एज, उसमें 1917 और 1919 वाला आखिरी था। आज़ादी के ठीक बाद 1947 के ठीक अगले साल 48-49 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम रखा राधा कृष्ण कमीशन, और ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में था। उसके 3 साल बाद एक मुरलीधर कमीशन बनाया गया, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, मुरलीधर कमीशन, जो सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में अपना रिकमेंडेशन देता है 52-53 में। फिर कोठारी कमीशन बनता है 1964-66 में। अब जितना मैंने आपको बताया इसमें अभी तक, ये 1813 के चार्टर एक्ट से लेकर के अगर आप चले आएंगे तो कोठारी कमीशन में पहुंचेंगे, तो इसके कोठारी कमीशन के पहले वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोठारी कमीशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन एजुकेशन सिस्टम में काफी कॉम्प्रिहेंसिव बदलाव की बात करता है 64 और 66 में, 1964-66, और बेस्ड ऑन कोठारी कमीशन ही आपकी पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इंडिया की आती है 1968 में। तो कोठारी कमीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी पर आधारित भारत की पहली शिक्षा नीति थी 1968, और उसको मॉडिफाई किया गया 1986 में। सॉरी, 1986 में भारत की दूसरी शिक्षा नीति आई जिसको मॉडिफाई किया गया 1992 में, और उसके बाद लगभग आप मान लीजिए 14 साल उधर हो गए और 20 साल इधर, 34 ईयर्स के बाद भारत ने अपनी शिक्षा नीति को बदला और 2020 में एनईपी 2020 आपका आता है। तो ये तो आपकी जर्नी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमने आपको बताया, जो द समथिंग दैट वी डिस्कस जस्ट नाउ, वी आर गोइंग टू टेक अ क्विक लुक ऑन ऑल दोस कमीशंस। स्टार्टिंग विद द 1813 का जो सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमीशन था जिसको चार्टर एक्ट कहा गया। उसके 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला कि इसने 1 लाख एनुअली फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन खर्च करने की बात की। 1817 में 1 लाख काफी होता होगा। उसने कहा कि भारत शिक्षा में 1 लाख रुपए प्रति महीना प्रति साल खर्च करेगा, यानी बजट को बढ़ाया। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर था, तो ऑब्वियसली ये दिखा रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी सीरियस हो रही है। तीसरा, ग्रेटर मिशनरी एक्टिविटी, यानी जो क्रिश्चियन एक्टिविटीज थी उनको ज्यादा प्रमोट करने के लिए इस चार्टर एक्ट ने कहा, बात कही। फिर आते हैं 1835 मैकॉलेज मिनट्स, टॉमस बैबिंगटन मैकॉले, बहुत फेमस है, आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो आप समरी पढ़ लीजिएगा। मैकॉले ने कहा कि जो वेस्टर्न नॉलेज है वो इंडियन नॉलेज की तुलना में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। एंड मैकॉले ने ये भी कहा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो किसी भी भारतीय लैंग्वेज या भारतीय लैंग्वेजेस की तुलना में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, और इसलिए उन्होंने कहा कि उसने कहा कि ये जो गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे संस्कृत और अरबिक सिखाने में खर्च कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये सारा वेस्टेज ऑफ मनी है, सब बंद करना चाहिए तुरंत, और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कल्चर को सिखाने में मेहनत करनी चाहिए। इसके अलावा मैकॉले ने कहा कि हमें एक ऐसी क्लास तैयार करनी है जो देखने और सुनने में तो इंडियंस लगेंगे, लेकिन वो होंगे बेसिकली थॉट से और बिहेवियर से ब्रिटिश होंगे, और ये लोग धीरे धीरे करके पूरे इंडिया को
ब्रिटिशर्स की तरह या अंग्रेजों की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। ये उनका मैकॉले का मिनट था 1835 में, और अगर आप देखेंगे तो लगभग वैसा ही हुआ। जो मैकॉले चाहता था लगभग लगभग वो सारा हो गया। आज हम सब वी ऑल हैव बिकम ऑलमोस्ट अंग्रेज, राइट। नाउ 1835 के बाद वुड्स डिस्पैच आपका जो है, जस्ट मिनट प्लीज, राइट, 1854। इसका जो इसका ये था कि एजुकेशन शुड बी एक्सपेंडेड एट ऑल लेवल्स, राइट। और ये कहता है कि एजुकेशन जो हम अभी बात कर रहे थे कि बस एक कुछ लोगों को सिखा दो, जो आपके मैकॉले कह रहे थे वो ना करके सभी को सिखाना है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन टू बी एस्टेब्लिश्ड इन ईच प्रोविंस। और इसी समय जो आपका वुड्स डिस्पैच आता है 1854 में, इसके बाद ही ये आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, इन तीनों को स्थापित किया जाता है ना। ये याद रखना है कि 1854 का रिकमेंडेशन के बाद ये यूनिवर्सिटीज कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास आती हैं। टीचर ट्रेनिंग की बात पहली बार वुड्स डिस्पैच करता है कि टीचर ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको कैसे पढ़ाना है ये सिखाना चाहिए। और फीमेल एजुकेशन के बारे में भी वुड्स डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंस देता है। वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज को प्राइमरी में प्रमोट करना। आप देखेंगे एनईपी 2020 भी ये कहता है कि प्राइमरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आपकी मदर टंग में होनी चाहिए। और वुड्स डिस्पैच 1854 में भी यही कह रहा है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में होनी चाहिए। सो और इसने एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात की जैसे जो कि ग्रांट दे सके स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, जिससे वो चल सके। तो लॉट्स ऑफ रिफॉर्म्स और लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर देयर इन टुडेज एजुकेशन सिस्टम, दे केम फ्रॉम वुड्स डिस्पैच। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हंटर कमीशन 1882, दिस सेज दैट, इसके जो चेयरमैन थे विलियम हंटर थे। इसने वुड्स डिस्पैच जो 1854 में आया था उसको रिव्यू किया लगभग 28 साल के बाद। और रिव्यू करने के बाद देखा कि क्या एजुकेशन का लेवल है। और इसने भी प्राइमरी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया कि प्राइमरी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा करने की आवश्यकता है। और प्राइमरी एजुकेशन में अथॉरिटीज़ का, गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़े, ऐसा विलियम हंटर और उनकी टीम ने रिकमेंड किया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो प्राइवेट स्कूल्स ढेर सारे खुले, और आज के टाइम में हम सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ते हैं, तो हंटर कमीशन उसका जन्मदाता था 1882। 1904 जो आज़ादी के पहले का आखिरी प्रयास था हमारे इंडिया में एजुकेशन में सुधार लाने का, बेसिकली ये हायर एजुकेशन के लिए था। नाम है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर के आई। उस समय लॉर्ड कर्जन वाइस राय हुआ करते थे। लॉर्ड कर्जन के समय ये आया इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। और ये कहता है कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो यूनिवर्सिटीज पे बढ़ाना चाहिए, सो दैट कि यूनिवर्सिटीज वो पढ़ाएं जो गवर्नमेंट चाहती है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग बनाना चाहिए, और टीचिंग और रिसर्च पे ज़्यादा प्रयास होना चाहिए। और सुपरविजन यूनिवर्सिटीज पे गवर्नमेंट का काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। ये कुछ बातें इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट में कही। हालांकि पैसा भी बढ़ाया, लेकिन एक तरीके से कंट्रोल भी बढ़ाने की बात कही उन्होंने। फिर माफ करिएगा, एक और कमीशन आता है जो आज़ादी से पहले 1917-1919 में, जिसका नाम है सैडलर कमीशन। और सैडलर कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो माइकल सैडलर हैं। और माइकल सैडलर यूनिवर्सिटी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं। बेसिकली जो सैडलर कमीशन बना था 1917-1919 में, उसका जो प्रथम उद्देश्य था वो था कलकत्ता यूनिवर्सिटीज की कुछ प्रॉब्लम्स को स्टडी करना। लेकिन जब वो लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करने लगे, तो उनको लगा कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये बेसिकली हर एक यूनिवर्सिटी में रिफर की जा सकती है, रिकमेंड की जा सकती हैं। इसलिए ये सैडलर कमीशन सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी तक सीमित ना रह गया, बल्कि ये और भी यूनिवर्सिटीज के लिए काफी कारगर साबित हुआ। सैडलर कमीशन ने रिकमेंड किया कि 12 साल की पढ़ाई कम से कम होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के पहले, जिससे कि बच्चे यूनिवर्सिटी में आए तो वो काफी अच्छे लेवल पे हों। इंटरमीडिएट एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी और स्कूल के बीच में है,
उसको मजबूत करने की बात की। यूनिवर्सिटीज को कोर्स बनाने में, नए कोर्सेज चलाने में पूरी की पूरी स्वायत्तता हो, ऑटोनॉमी हो, उसके बारे में शर्टलर कमीशन ने बात किया। और सेकेंडरी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए सुझाव दिए, और टीचर ट्रेनिंग और वीमेन एजुकेशन की बात भी सैडलर कमीशन करता है। फिर राधाकृष्ण कमीशन आता है 48-49, ये आज़ादी के बाद पहला प्रयास था। बेसिकली हायर एजुकेशन की ही बात करता है, यूनिवर्सिटी टीचिंग की बात करता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था राधाकृष्ण कमीशन का कि ये डेमोक्रेटिक और सोशल वैल्यूज को एजुकेशन में इनबिल्ट करने का प्रयास करता है, राइट। और यूजीसी को प्रमोट करता है कि यूजीसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। इसके बाद मुरलीधर कमीशन आता है। मुरलीधर कमीशन, इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुरलीधर हैं। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुरलीधर, 1952-53। सेकेंडरी एजुकेशन को रिफॉर्म करना, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप ले आना, वोकेशनल इफिशियंसी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ना हो बल्कि नौकरी पाने के लिए भी लोग पढ़ाई करें। सेकेंडरी एजुकेशन में ढेर सारी ब्रांचेस बनाना जिससे लोग जो चाहें वो पढ़ सकें, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज स्टूडेंट की इंटरेस्ट उनकी एबिलिटी के हिसाब से डिजाइन करना। ये कुछ रिकमेंडेशंस थी जो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुरलीधर की टीम ने किया और उसमें से काफी माने गए। कोठारी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहली एजुकेशन पॉलिसी का बेस पॉइंट है, इसलिए इसमें 3 स्टार लगे हुए हैं। डॉक्टर DS कोठारी नाम है, जो कोठारी कमीशन के हेड हैं। और ये अभी तक जितने भी एजुकेशन के बारे में रिफॉर्म हुए थे उन सभी को बहुत डिटेल में कोठारी कमीशन ने रिव्यू किया, और कोठारी कमीशन ने ही ये 10+2+3 का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने हटा दिया है, चेंज कर दिया है। 10+2+3 स्ट्रक्चर, इसमें स्कूल प्लस हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी की बात होती थी। इसको प्रपोज किया और तभी से ये लागू हुआ है। कॉमन स्कूल सिस्टम जिसमें ग्रेटर इक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसके बारे में कोठारी कमीशन बात करता है। अब कोठारी कमीशन का, या कह लीजिए कि पहली शिक्षा नीति का जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था और अभी वाली का जो है उसमें क्या फर्क है वो हम आगे देखेंगे। एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, कि शिक्षा जो है वो राष्ट्र की प्रगति के लिए कैसे प्रयोग की जाए, इसके बारे में कोठारी कमीशन ने काफी कुछ बातें कही हैं। साइंस एंड मैथ, यस, हाँ, ओके, आई विल डू इट, लेट मी फिनिश टीचिंग देन आई विल डू इट। ऑल राइट, डन। सो फ्रेंड्स, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट की बात की, और साइंस और मैथमेटिक्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात कोठारी कमीशन ने की, क्योंकि उस समय यह था कि साइंस और मैथमेटिक्स से जो हमारा साइंटिफिक इनोवेशन इन्वेंशंस होंगे हम उससे आगे बढ़ पाएंगे। और कोठारी कमीशन ने यह भी बात किया कि एजुकेशन में वर्क एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दिया जाए। तो आप देखेंगे जो आपकी NEP 2020 है, जो जिन बातों को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रही है या बढ़ा चढ़ा कर करने को कह रही है, वो ऐसा नहीं है कि एकदम नए हैं, वो कोठारी कमीशन से शुरू होते हैं और ऑब्वियसली अब उनको एक अगले स्टेज पर ले जाने की आवश्यकता दिखाई देती है। अब हम पहुंचते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1968 में, जो भारत की पहली एजुकेशन पॉलिसी थी। इसने जो मुख्य बातें थी, सबसे पहली बात ये कि ये कोठारी कमीशन के पर आधारित थी। दूसरा, ये नेशनल और सोशल इंटीग्रेशन की बात करती है, तो हिंदी के बारे में ये भी बात करता है, और इसका भी विरोध हुआ। नेशनल एंड सोशल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी की बात करता है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करता है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को ये प्रमोट करता है। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का मतलब कि शिक्षा सिर्फ एक ही भाषा में ना होकर के कई भाषाओं में होनी चाहिए, है ना, इसके बारे में बात करता है। और लेट्स कंटिन्यू। इसके अलावा जो आपका पहली एजुकेशन पॉलिसी है, दैट टॉक्स अबाउट द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी,
स्पेशल एम्फेसिस ऑन डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो जो SEDG है, जो आपका NEP बात कर रहा है 2020, वो यहीं से आ रहा है। देखिए, डिसएडवांटेज ग्रुप को प्रमोट करने की बात पहली एजुकेशन पॉलिसी भी कर रही है, और इसका प्रयास था कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबर मौका मिले। साइंस और मैथमेटिक्स की बात कोठारी कमीशन ने किया था, उसी को अडॉप्ट किया गया है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 ने अडॉप्ट किया। टीचर को का जो स्टेटस था, दैट इज एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग टीचर्स स्टेटस कंडीशन, दैट इज टीचर्स को ट्रेनिंग देना और उनकी क्या कहते हैं वेल बीइंग के बारे में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 बात करता है। और 10+2+3 का स्ट्रक्चर सपोर्टेड द एजुकेशनल स्ट्रक्चर रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन, ये आपका 1968 की पॉलिसी की देन है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो पढ़ के हम लोग टीचर बने हैं। अब 1968 के बाद एग्जैक्टली आप देखेंगे तो 18 साल के बाद हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आती है, और वो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इसने क्या परिवर्तन किए? पहला, एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसमें यूज किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप याद रखिएगा, ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में आया है। तो ये कहता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बेसिकली टॉक्स अबाउट कि जो लर्निंग टूल्स हैं, जैसे आजकल हम TLM की बात करते हैं, तो ब्लैक बोर्ड का मतलब हुआ कि दैट सिंबलाइजेस द लर्निंग टूल्स, और ज्यादा से ज्यादा लर्निंग टूल्स को प्रयोग किया जाए। एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया जाए, मतलब लगभग एक जैसी शिक्षा पूरे भारत देश में प्राइमरी में दी जानी चाहिए। वीमेन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बात की गई है, और ज्यादा एडल्ट एजुकेशन, यानी जो लोग बहुत बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उनके बारे में भी बात करता है ये जो आपकी 86 की पॉलिसी है। टीचर एजुकेशन में टीचर्स को ट्रेनिंग देना, टीचिंग के लिए इंस्टीट्यूशंस खोलना, जो आप BEd M.Ed वगैरह करते हैं या कर चुके हैं, वो सारा इसी पॉलिसी की देन है। और वैकेशनलाइजेशन, दैट इज ग्रेटर एम्फेसिस ऑन वैकेशनल एजुकेशन। तो इसके पहले भी वैकेशनल एजुकेशन पे जोर था, 1986 में और जोर दिया गया, 2020 में और ज्यादा उस पर प्रयास किया जा रहा है। और एक और पॉइंट जो आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 कहता है, वो है एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। दैट इज एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए कि वो समता का भाव ले आए, समता का भाव, समानता का भाव ले आए। एक ऐसा समय वो कल्पना करे कि जब सभी बराबर होंगे। लेकिन 6 साल के बाद इसको मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई क्यों किया गया, ये एक अपने आप में प्रश्न है। 6 इयर्स के बाद ऐसा क्या हो गया कि इसको मॉडिफाई करना पड़ा? सो ऑब्वियसली कुछ पॉलिटिकल और कुछ एजुकेशनल फैक्टर्स होते हैं, हम फिलहाल उस पर नहीं जा रहे हैं। मॉडिफिकेशंस क्या हुए उसको ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं। ये कहा गया कि जो 1986 की पॉलिसी है उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है, और उसमें बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है या स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है, उसको लोकल लेवल पे बांटने की जरूरत है। तो 1992 में बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है। इसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको देख करके देखने का प्रयास किया गया। टीचर एजुकेशन में समस्याएं जो आई थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। और वीमेंस एजुकेशन और डिसएडवांटेज ग्रुप की बात तो की गई थी 86 में, बट एग्जीक्यूट बहुत कुछ नहीं हो पा रहा था। तो एग्जीक्यूशन में क्या इश्यूज थे उनको देख करके सही करने का प्रयास किया गया। बेसिकली आप देखेंगे तो 1986 के बाद 1992 में जो आपकी पॉलिसी आती है, उसका मतलब जो मॉडिफाई किया जाता है, उसका एक ही मतलब है कि जो एग्जीक्यूशन में इश्यूज आ रहे थे उनको दूर करना। तो ये एक आपका शॉर्ट फॉर्म है, अगर आप इसको याद करना चाहें तो CMWHS। ये आपके जो कमीशन आए हैं पहले वो हैं, सबसे पहले आपका Sir, screen is not visible. It is not visible. Not visible. Is it not visible to all? Yes, sir. It was only like visible till the last minute. It has just disappeared. Okay. Is it visible now? No, no. No. Let me share the screen again then. Just wait for a minute. Just stay online.
share screen. Thank you for informing me in time. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is visible now. Yeah. Thanks, thank you very much. So this is a slide that may be useful for you. अगर आप इस slide की help से याद करना चाहेंगे तो so look at the CMWHS. So if you go back, you can see here C is like the Charter Act, M is Macaulay's Minute, W is Wood's Dispatch, H is Hunter Mission, I is Indian Universities. Sir, you are not audible. I'm not audible. Okay, am I audible? Yes, you're audible. Yes, sir, you're audible. Okay, right. So as I was saying that this one CMWHS, whatever I taught just now, this is the just summary of that. If you wish, you can, with the help of this. Ravi, sir, we can't hear you. Okay. Am I audible? Sir, you are audible to me. Yes, sir, you are audible to me also. You are audible, sir. Audible, you are Audible, audible sir, to audible. everyone. It is the problem of your personal problem, I think. Please, okay. So please look into this slide. जो अभी तक किया उसका ये शॉर्ट फॉर्म है, आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा और पिछले वाले से कनेक्ट करेंगे तो आपको रिवाइज करना आसान हो जाएगा. Ravi, sir, you are है ना? not audible. Okay. Sir, Am I you are audible to audible. others? You are audible. You are perfectly Ma'am, audible. I think you Ma'am, need to please check. check your connection. Yes, एग्जिट करके इन कर लो तो हो because जाएगा. sir is audible. I think there is some problem with your audio system. You can check, please. your contribution. Okay, let's move ahead then. विजन ऑफ एनईपी 2020. अब एक क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और इस पे क्वेश्चन आपके रिटन एग्जाम में भी बन सकता है कि जब हम लगभग वही चीजें कर रहे हैं और हम उन्हीं को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं तो हम बिना एजुकेशन पॉलिसी लाए भी तो वो काम कर सकते थे. हम उसके लिए एक एजुकेशन पॉलिसी बनाने की क्या जरूरत थी? तो उसका आंसर ये है कि बदलते समय के साथ देश का जो विजन होता है वो मॉडिफाई होता है और आज के Ravi, समय sir, में we can't hear you. Okay. You are perfectly audible. Okay, who cannot hear me? Tell me your name. All right. Sushila ma'am, can you hear me? Yes, sir. Completely audible. Yes, and maybe ma'am, then one who cannot hear me, please check your connection. Maybe there's some issue. If you cannot hear me, don't worry. I will upload this. You can then catch it up. Keep trying. It will come to you. All right. So friends, right. So इसका जो किसी भी नेशन का जो विजन होता है, जो आइडियाज होते हैं, वो 10 साल 20 साल में चेंज होते हैं और ऐसा देखा गया कि इंडिया का जो विजन था वो मॉडिफाई हुआ. उसमें जो मॉडिफिकेशन की आवश्यकता थी वो एनईपी 2020 लेकर के आता है. सो इसका जो टारगेट है, अगर आप ये देखेंगे, ये जो आपकी लाइन है, it says an education system rooted in Indian ethos. So basically it is an attempt to fly high but stay connected to the roots. इसका मतलब ये है कि हम जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनको बहुत आसानी से पकड़ेंगे, उनको प्रयास करेंगे, लेकिन अपनी रूट्स को हम दोबारा कैच करने की कोशिश करेंगे. ये एनएबी 2020 का विजन है. इसमें जो आपके यहाँ 7 पॉइंट्स लिखे गए हैं उनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडिया एज अ नॉलेज सोसाइटी. सो बेसिकली ऐसा देखा गया कि जो हमारी 1986 और 1992 की एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स लैग कर रहे थे, हम यहाँ कहीं पिछड़ रहे थे. इसलिए एनईपी इन चीजों को ब्रॉटअप ब्रिंग बैक करने की कोशिश करती है. आगे चलते हैं. सो देयर आर 5 पिलर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. 5 पिलर्स जिन पर ये पॉलिसी खड़ी हुई है और जिनको ये प्रमोट करने की बात करती है. सबसे पहले एक्सेस, स्टूडेंट्स का एक्सेस एजुकेशन तक बढ़ाना, ये इसका एक पिलर है. इक्विटी, शिक्षा किसी अमीर के लिए बहुत आसान और गरीब के लिए बहुत मुश्किल हो, इस व्यवस्था को खत्म करना, इक्विटी लाना. क्वालिटी,
एडुकेशन जो बच्चे रिसीव कर रहे हैं या जो यंग लोग रिसीव कर रहे हैं, वो एडुकेशन में क्वालिटी हो, ऐसा ना हो कि बस वो क्लास पास करते जा रहे हैं। बिकॉज ये देखा गया कि क्लास 12 पास बच्चा भी एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहा है। तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग आई उसमें ये कहा गया कि एप्लीकेशन लिखना पहले सिखा दो, 12वीं पास करेगा कि नहीं पास करेगा वो बाद की बात है। मतलब हम 12वीं नहीं देखेंगे, हम एक्चुअली ये देखेंगे कि स्किल है या नहीं है। अफोर्डेबिलिटी, एनईपी ये कहता है कि शिक्षा बहुत महंगी अगर हो जाएगी तो फिर बहुत सारा जो हमारा क्राउड है, जो हमारे लोग हैं, वो अशिक्षित रह जाएंगे या अर्ध शिक्षित रह जाएंगे। तो अफोर्डेबल होना चाहिए एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे लोकल बॉडीज की हो, चाहे स्कूल की हो, प्रिंसिपल की हो, टीचर की हो, सभी या पेरेंट और गार्जियन की हो, सभी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी कि अगर लैक है तो कहाँ से आ रहा है, पता लगा करके लीक को बंद किया जाएगा। So these are the 5 pillars of your AEQAC, AEQAC in short, the 5 pillars of NEP 2020. ओके, अब हम ड्राफ्ट की बात कर लेते हैं कि ये जो NEP 2020 का ड्राफ्ट है इसमें क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 बेसिकली स्कूल एजुकेशन की बात करता है और पार्ट 2 हायर एजुकेशन की बात करता है। हमारे लिए जो पार्ट 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम पार्ट 1 को डिटेल में पढ़ेंगे और पार्ट 2 को हम सिर्फ 2-4 पॉइंट्स वहां से पिकअप करेंगे और छोड़ देंगे, क्योंकि पार्ट 2 हमारे लिए इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है या कम जरूरी है, आप कह सकते हैं। पार्ट 1 में 8 चैप्टर्स हैं और 2 में 10, टोटल 18 चैप्टर्स हैं एनईपी 2020 में। पार्ट 1 की जो 8 चैप्टर्स हैं वो आपके सामने हैं, जिनकी मैपिंग मैंने आपके सामने की है, और ये इन 8 चैप्टर्स के नेम हैं और इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो चैप्टर 8, 6, 4 और 7 ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। चैप्टर 7 गवर्नेंस, चैप्टर 4 करिकुलम एंड पेडागोजी, chapter 6 equity and inclusion, chapter 8 standards and accreditation. These 5 chapters are the most important chapters of part 1. So I am 100% sure that if like I'm not badly mistaken, तो इन 5 चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको ये 5 चैप्टर थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। तो हम एक एक चैप्टर को देखते हैं। नाम आप यहाँ पढ़ ही ले रहे हैं, तो मैं क्योंकि मैं सारे चैप्टर 1 बाय 1 करने वाला हूँ तो मैं इस स्लाइड को से आगे बढ़ जाता हूँ। तो हम सबसे पहले चैप्टर्स पर जाने से पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो इन चैप्टर्स में आने वाले हैं, फिर हम इन चैप्टर्स पे वापस लौटेंगे। मैं एक बार नाम पढ़ ही देता हूँ। सबसे पहले ECCE है, चैप्टर 1 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECCE आप बार बार सुन रहे हैं, इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। याद रखना है, सोते समय भी अगर ECCE कोई बोले तो तुरंत याद आना चाहिए। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तीसरा एक्सेस एंड ड्रॉप आउट, चैप्टर 3, जिसमें यूनिवर्सल एक्सेस की बात की गई है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER का फुल फॉर्म है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, याद रखना है। चैप्टर 4 करिकुलम एंड पेडागोजी की बात करता है, इसमें 5+3+3+4 सब्जेक्ट्स, यू लैंग्वेजेस, असेसमेंट, वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है, और ऐसे ही है। आगे चलते हैं। तो इसके पहले कि हम चैप्टराइजेशन में जाएं, कि चैप्टर 4 का एक पार्ट है 5+3+3+4, जिस पर क्वेश्चन बनने के चांस 90% हैं। मुझे लगता है कि इस पर एक क्वेश्चन 100% या 90% बनना ही बनना है। तो सबसे पहले हम ये 5+3+3+4 को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि कोठारी मिशन के बाद और जो आपकी पहली एजुकेशन पॉलिसी 68 में आई और दूसरी 86 में जो मॉडिफाई हुई 1992 में, इन सब में जो फॉर्मूला आया वो 10+2+3 का फॉर्मूला था। यानी पहले 10वीं पास कर लो 1 से लेकर 10 तक, उसके बाद 2 साल की 12वीं, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहता है कि वो थोड़ा पुराना हो गया, आज के ज़माने में फिट नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, पहले 5 साल को हम मान लेते हैं कि पहले 5 साल में बच्चा 3 साल तो प्री प्राइमरी पढ़ेगा और 2 साल कक्षा 1 और 2 पढ़ेगा। सो ही विल स्टडी और शी विल स्टडी फॉर फर्स्ट 5 years, she will reach up to class 2 for the first 3 years. So like if my daughter is in a private school and there they have
nursery, LKG and UKG, and then class 1 and class 2. These 5 years are, dear friends, the first 5. इसमें जो पहला 5 है उसका मतलब है 3 years प्री स्कूल और कक्षा 1 और कक्षा 2, राइट. सो व्हाट चेंजेस? इस 5 साल में बच्चा क्या करेगा? He will play activities, she will do language learning, she will do numeracy, and she will be ready for school. So it is in a way fun age where the student will not be assessed. उसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है बट कोई असेसमेंट नहीं होगा, मतलब फॉर्मल असेसमेंट नहीं होगा. देन हम आते हैं प्रिपरेटरी एज पे. पहला वाला फाउंडेशनल कहा जाता है, 3 to 8 वाला जो 5 है आपका. Then we come to preparatory, the first 3. This is for the age 8 to 11. When she is when they are 8 years, 9 years, or 11 years old. This is class 3, class 4, and class 5. Now, in these 3 classes, the student will focus on discovery, activity, language learning, and subject learning. This is the 3 years. So you see, the first 5 years were basically play based, and the second preparatory age is basically discovery based, where the student will try to discover or understand the things. Then the second 3, which is called middle. So we have done foundational, we have done preparatory. Now the child is of 11 years age and he enters into middle age. He enters to class 6 and he studies class 6, 7, 8. And in these 3 classes, the student will do experiential learning. That is, he will be given things to do so that he can learn. He will be given concepts, visual concepts, and at this stage only, the vocational exposure will begin. That is, this middle age, 11 to 14 or 6 to 8 class 6 to class 7, class 8, this will prepare the child कि वो बच्चा vocational exposure में उसको मिले और वो पता लगा पाए कि वो आगे क्या करने वाला है, कौन से एरिया में उसका इंटरेस्ट है. और फिर आता है आपका आखिरी वाला यूनिवर्सिटी से पहले, जिसको प्री यूनिवर्सिटी या सेकेंडरी स्टेज कहा गया, जिसमें आपका आखिरी का 4 है, ये 4 years, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12. और इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि ये कहा गया कि 9, 10 और 11 और 12 के बच्चे मतलब टीचर्स एक जैसे होंगे, एक ही माना जाएगा उनको. अभी हम क्लास 10 तक पीजीटी और क्लास 11, 12 को पीजीटी कहते हैं. उसमें कुछ परिवर्तन आने की पॉसिबिलिटी यहीं से हो रही है. ये जो 5+3+3+4 हो रहा है आपका, लास्ट का 4 सेकेंडरी एजुकेशन है, जो क्लास 9, 10, 11, 12 4 क्लासेस की बात कर रहा है. Somebody's mic is on, please switch it off. 9 to 12 and you will see. अब यहाँ पर देखिए वोकेशनल एक्सपोजर तो हो चुका 6 से 8 में ही. 9, 10, 11, 12 में पहली बार बात हो रही है मल्टी डिसिप्लिनरी. मतलब यू कैन नॉट से टू चाइल्ड कि बेटा तुमको आर्ट्स लेना है कि साइंस लेना है, ये बात पुरानी हो गई. अब आप बच्चे का इंटरेस्ट है, वो जो चाहेगा वो पढ़ेगा. मल्टी डिसिप्लिन अलाउड हो गया, फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट चॉइस हो गई, राइट. एंड डीपर क्रिटिकल थिंकिंग को इन्वॉल्व किया गया है. दैट इज, हम रोट लर्निंग को खत्म करेंगे और हम बच्चे से ये पूछेंगे ही नहीं कि रामचरितमानस में जब रावण को राम को मारना था तो फिर कि राम ने क्या किया, ये तो याद करके लिख देगा बच्चा. हमें ये पता लगाना है कि राम और रावणत्व और रामत्व क्या होता है और क्यों होता है, राइट. ऐसे क्वेश्चंस जो हम डीप थिंकिंग में जाकर बात करते हैं, ये 9 से 12 तक, कक्षा 9 से कक्षा 12 सेकेंडरी एजुकेशन में आता है. तो ये आपका 5+3+3+4 है, जिसमें क्वेश्चन आपका 100% बनने की पॉसिबिलिटी है. अगर किसी का क्वेश्चन इस स्लाइड पर है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. यस, एक्सक्यूज मी. हाँ यस सर, ये फॉर्मल असेसमेंट किस लेवल पर होगा फर्स्ट टाइम? आपका जो क्लास फाउंडेशनल वाला है, फाउंडेशनल के बाद असेसमेंट शुरू हो जाएगा, राइट. फाउंडेशनल जो आपका 3 to 8 है, इसके बाद यहाँ से असेसमेंट शुरू हो जाता है. बट वो असेसमेंट में किसी को हम फेल नहीं करते, वो सिर्फ ग्रेडिंग के लिए होता है ना, ग्रेडिंग बेस्ड है. हाँ. और क्लास 6 to 8 जो होता है वो भी आपका ग्रेडिंग बेस्ड होगा, लेकिन इसमें थोड़ा आपको मार्क्स वगैरह भी आ जाते हैं. और जो प्रॉपर फॉर्मल असेसमेंट है वो क्लास 9 to 12 में ही होगा. और सर बोर्ड एग्जाम फिर 12th में होंगे लास्ट? बोर्ड एग्जाम के बारे में भी बात करेंगे. बोर्ड एग्जाम डबल करने की बात की गई है. 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, 12वीं में 2 होंगे. अब जो सिंगल बोर्ड एग्जाम होता था उसको 2 कर दिया जाएगा
और बच्चा दोनों में से एक देगा या दोनों देगा, और उसमें उसके ऊपर प्रेशर कम करने की बात की गई है. सो वी विल टॉक थैंक अबाउट यू दैट. सर, थैंक यू सर। अब क्वेश्चन ये है कि आपसे यूपीएससी ने पूछा ये 5+3+3+4 क्यों दिया गया, और आप उसने 4 सेंटेंसेस दे दिए, और चारों सेंटेंसेस आपको एक जैसे लग रहे हैं. लगेगा यार चारों सही है, मैं क्या करूं, कौन सा आंसर दूं. तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं. आप थोड़ा सा अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा. ट्राई करिए कि आप इनको दिमाग में रख पाइए. पहला पॉइंट ये है कि जो 3 to 6 ईयर्स वाला एज था वो काफी ज्यादा इंडिया में एक तरीके से कह लीजिए इनफॉर्मल हो गया था. कहीं कुछ भी चल रहा था, और प्राइवेट गवर्नमेंट सब जगह थोड़ा अलग अलग था. तो उसको एक फॉर्मल सेटअप में लाने की, फॉर्मल करिकुलम में लाने का प्रयास किया गया है 3 to 6 ईयर्स वाला. इसीलिए 5+3+3+4 आया है, जिसमें ECCE, जिसको जो चैप्टर 1 है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, है ना, उसको उसको प्रमोट किया गया है. इसलिए इसका की आवश्यकता पड़ी. दूसरा कारण यह है कि इट अलायंस करिकुलम एंड पेडागोजी विद चिल्ड्रंस डेवलपमेंटल स्टेजेस. नाउ सिंस द टाइम हैज चेंज्ड, 1986 का बच्चा तो अब है नहीं, 92 वाला है ना. अब तो बच्चा बदल गया है. तो उसका जो एजेस हैं उनके डेवलपमेंट के एज के अकॉर्डिंग उसकी एजुकेशन को बदला जाए. जो पहले बच्चा 11वीं 12वीं में सीखता था, 9वीं में ही सीख के बैठा हुआ है ना. तो इसलिए 9 to 12 किया गया है. थर्ड, इट मूव्स अवे फ्रॉम द रिजिड क्लास सब्जेक्ट स्ट्रक्चर. जो हमारा था क्लास 9th में आते डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या लोगे, साइंस या मैथ्स. 11th में डिसाइड करना साइंस या आर्ट. 11th में डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे या बायोलॉजी पढ़ोगे, वगैरह वगैरह. वो सारी चीजें दूर करने के लिए किया गया है. अगला, makes foundational literacy and numeracy a national priority. Now this is a very important point. You know, ये देखा गया कि बच्चे पढ़ करके आगे निकल जा रहे हैं लेकिन उनको लिखना नहीं आ रहा है, पढ़ना नहीं आ रहा है. तो बेसिकली जो निपुण है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, नेशनल मिशन बनाया गया, नेशनल प्रायोरिटी बनाई गई कि बच्चे को पढ़ना लिखना आना ही चाहिए इस क्लास में. Then last point, creates a progression from play-based learning, discovery, conceptual learning to multidisciplinary choice. तो एक टारगेट रखा गया कि बच्चे को मल्टीडिसिप्लिनरी चॉइस तक पहुंचाना है. उसके लिए कौन कौन से स्टेजेस से उसको गुजारना है, इसलिए ये 5+3+3+4 आपका आता है. अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन का पार्ट 2. मैंने आपसे कहा कि NEP 2020 हैज 2 पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2. पार्ट 1 में स्कूल एजुकेशन की बात की गई जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो उसमें 8 चैप्टर्स हैं, और पार्ट 2 में 10 चैप्टर्स हैं, वो हायर एजुकेशन का है. तो हायर एजुकेशन वाला हम स्किप करेंगे, 2-4 पॉइंट्स उसमें से उठाएंगे. अभी कुछ देर के बाद उसको पिकअप करते हैं. नाउ दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज रिमेंबर दिस स्लाइड. ये स्लाइड से क्वेश्चन आपका बन सकता है. चैप्टर 4, 5+3+3+4 कहाँ आता है, चैप्टर 4 में आता है. FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कहाँ आता है, चैप्टर 2 में. टीचर्स का डेवलपमेंट या टीचर्स का सिलेक्शन, ये सारी बातें चैप्टर 5 में है. SED सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, SEDG का मतलब होता है सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप. ये चैप्टर 6 में बात होती है. स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, इसमें एक आइडिया है चैप्टर 7, थोड़ा आगे बताऊंगा आपको, बट अभी बता देता हूँ. न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि एक स्कूल के जो रिसोर्सेज हैं या जो कैंपस है वो किसी एक स्कूल का ही नहीं है, वो सभी स्कूल का है. कहने का मतलब ये है कि कैंपसेस को शेयर किया जाएगा, बुक्स को शेयर किया जाएगा, रिसोर्सेज को शेयर किया जाएगा, टीचर्स को शेयर किया जाएगा. दैट इज स्कूल कॉम्प्लेक्स की कंप्लीटली मीनिंग को मॉडिफाई करती है NEP. और वो कहती है कि आप किसी भी तरीके से एक टीचर, एक स्कूल, एक बुक या एक वाद्य यंत्र या किसी भी चीज को एक्सक्लूसिव मान ही नहीं सकते, वो सभी का है. तो अगल बगल वाले स्कूल वाले अगर आपके यहाँ आकर के क्लासरूम यूज करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू NEP आप उसको मना नहीं कर सकते. ओके, स्कूल के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी चैप्टर 8 में बात की गई है. ये वाला याद रखिएगा, मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि चैप्टर वाइज कुछ पूछ सकता है. अब हम जो आपका पार्ट 1 है उसको चैप्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखेंगे, और जो आपका इजी चैप्टर्स हैं, जो इजी वाले हैं उनको मैंने छोटा बनाया है, और जो थोड़ा डिफिकल्ट वाले हैं उनको थोड़ा डिटेल में किया है. सो look at this. Chapter 1 is ECCE, Early Childhood Care and Education. याद रखना है,
तो ये NEP एज 3 पे बिगिन होती है। ये कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल, सोशल और लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करती है। ECCE जो है ये इसको यूनिवर्सल एक्सेस होना देने का प्रयास होगा और करना पड़ेगा, ये इसका टारगेट है ECCE का, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चे का अधिकार है, किसी एक का नहीं है। ECCE टू बी डिलीवर्ड थ्रू, और ECCE को डिलीवर करने के लिए क्या किया जाएगा? आंगनवाड़ी को मजबूत किया जाएगा, प्री प्राइमरी स्कूल को मजबूत किया जाएगा, और अगर इसके जैसे और इंस्टीट्यूशन बनाने पड़े तो वो भी बनाए जाएंगे। 8 साल की उम्र तक फाउंडेशनल स्टेज बच्चे को कवर करवाई जाएगी। सारी एक्टिविटीज प्ले बेस्ड होंगी, इंक्वायरी बेस्ड होंगी, और नेशनल करिकुलर बनाया जाएगा इसको ECCE का भी, और उसी को फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी पढ़ा रहा है। चैप्टर 2 बात करता है FLNE, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की। ये कहता है चैप्टर की देयर इज एन अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्विजिट टू लर्निंग। ये फाउंडेशनल लिटरेसी यानी बच्चे को लिखना पढ़ना तो आना ही चाहिए। जब बच्चा आपका स्टेज एक, पहला स्टेज या दूसरा स्टेज क्रॉस कर लिया, फाउंडेशनल स्टेज है ना, बच्चा आपका कक्षा 2 में पहुंच गया या कक्षा 2 पास कर लिया उसने, तो उसको लिखना और पढ़ना आना चाहिए। इसी का हिस्सा है जो आपका निपुण है। तो निपुण भारत की जो तस्वीर है, जो खाका है, वो चैप्टर 2 FLN में ही खींचा गया है, और FLN जो है वो निपुण का जन्मदाता है, ये आपको याद रखना है। इसमें FLN पे क्वेश्चन इसलिए बन सकता है क्योंकि निपुण पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का प्रयास है, और होना भी चाहिए क्योंकि इससे फायदा है अगर ईमानदारी से सरकार करवाए तो। अगर सिर्फ कहने के लिए करवाए तो अलग बात है। ओके, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात की गई है। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन अर्ली ग्रेड्स की बात की गई है। बेसिक एबिलिटी टू रीड, राइट एंड न्यूमरेसी टास्क। चैप्टर 3 कर्टेलिंग ड्रॉप आउट को कम करना, ड्रॉप आउट रेट को कम करना, और यूनिवर्सल एक्सेस, एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल हो, इसकी बात करता है। ग्रेड 12 तक यानी ECCE से लेकर के 12वीं तक, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से लेकर के कक्षा 12 तक एजुकेशन सबके लिए बहुत आसानी से एक्सेसिबल हो, इसकी बात वो करता है। ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए बच्चों को कैसे स्कूल में वापस लाया जाए, इसकी बात करता है। जो बच्चे एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, हमने पिछली वाले क्लास में भी बात किया था, जो आपका RTE 2009 है, वो भी इसी को ऐसी ही बातें करता है ना। हॉस्टल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को बढ़ाने की बात करता है, और ओपन और डिस्टेंस लर्निंग जितना हो सके उतना नया किया जाए, जिससे कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से सीख सके। Now we reach to the most important chapter of this NEP 2020, and which is chapter 4. सबसे important अगर आपका कोई चैप्टर है तो वो NEP 2020 है, माफ करिएगा चैप्टर 4 है NEP 2020 का। सो वी हैव करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, ये नाम है इसका, और इसको हम इस कुछ पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे। ब्रीफ में बताऊं तो 5+3+3+4 यहीं से आता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग CBP जो आपका अभी चल रहा है, CBL CBP जो CBSE बार बार करवा रहा है, कर रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर 4 से आ रहा है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कॉन्सेप्ट चैप्टर 4 से आ रहा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का और एथिकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट चैप्टर 4 से आ रहा है। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग का भी चैप्टर 4 से आ रहा है। मल्टीलिंगुअलिज्म का भी चैप्टर 4 से आ रहा है। वोकेशनल एजुकेशन चैप्टर 4 में है। असेसमेंट रिफॉर्म चैप्टर 4 में है। सो यू कैन सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इससे क्वेश्चन बनने का चांस सबसे ज्यादा है। चैप्टर 4 की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर कहता है कि भाई कंटेंट कम कर दो लेकिन सिखाओ बहुत डीप में जा करके, है ना। बच्चे को याद हो ना हो, उसका कॉन्सेप्ट बनना जरूरी है ना। एक सब्जेक्ट को आप बाकी सब्जेक्ट से अलग करके मत सिखाओ, जोड़ करके सिखाओ, दिखाओ कि कैसे एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट पे जुड़ा हुआ है। और ये जो पैसिव लर्निंग हो रही है कि टीचर ने ज्ञान दे दिया, बच्चे ने ले लिया, उसको खत्म करके ऐसी लर्निंग करो जिसमें ये दिखाई दे, तुरंत का तुरंत दिखाई दे कि बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा। और सिर्फ बच्चे को मैथ्स में मार्क्स देकर के अच्छा या बुरा मत साबित करो, उसका होलिस्टिक कार्ड बनाओ, उसको 15 या 20
चीजों पर ग्रेड करो, और ग्रेड करके आप ये देखो कि उन 15-20 में वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो आपको लगेगा कि वो बच्चा हो सकता है कि 5 में 0 हो, बट बाकी 10 में अच्छा हो। सो पहला पॉइंट, रिड्यूस करिकुलम लोड। चैप्टर 4 का पहला पॉइंट है करिकुलम लोड को कम किया जाए और लर्निंग डेप्थ को बढ़ाया जाए, है ना। चैप्टर में चैप्टर्स को कम किया जाए, लर्निंग को होलिस्टिक किया जाए, प्रैक्टिकल किया जाए, एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्राइसिस मैनेजमेंट ये सब क्लास में कराया जाए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी आप जो सिखा रहे हो उसको सिर्फ सिखा के मत आ जाओ। बच्चे से आप क्वेश्चंस पूछो, इन्वेस्टिगेट करने को बोलो, इंक्वायरी करने को बोलो, प्रोजेक्ट असाइनमेंट उसको देख बनाओ और बनाकर देखो कि क्या बना के एक्चुअली वो ला रहा है। कॉपी और पेस्ट को मत मारो। आर्ट इंटीग्रेटेड जो बात हम सीबीएसई करता है उसको बच्चे तो कॉपी करके लाते हैं और हम ले भी लेते हैं, बट बेसिकली उसको खत्म करना है और ये दिखाना है कि बच्चा सचमुच उसको खुद कर रहा है, पर्सनली कर रहा है। थर्ड पॉइंट जो आपका है चैप्टर 4 का, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल सेकेंडरी एजुकेशन, यानी आर्ट, साइंस, ह्यूमैनिटीज, वोकेशनल, ये सारे भेदभाव खत्म। जो बच्चा पढ़ना चाहेगा वो पढ़ेगा और उस हिसाब से करिकुलम डिजाइन किया जाएगा और करियर चॉइसेस दी जाएंगी। पॉइंट 4 चैप्टर का 4 का चौथा पार्ट वोकेशनल एजुकेशन से डील करता है और ये कहता है कि पहले जो हम सेपरेट यानी पढ़ाई को सेपरेट मानते थे और एजुकेशन को और करियर को सेपरेट मानते थे, अब पढ़ाई और करियर को जोड़ दिया जाएगा, इंटीग्रेटेड कर दिया जाएगा और वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। साल में कम से कम 10 डे बैगलेस पीरियड्स होंगे, 10 दिन कम से कम बैगलेस होगा और कक्षा 6 से 8 के बीच में इंटर्नशिप कराई जाएगी और 6 से 12 में जब बच्चा जाएगा तो उसको वोकेशनल लर्निंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, है ना। जब बैकलेस डे होंगे तो उसमें आर्ट्स होगा, स्पोर्ट्स होगा, क्विज होगा, एनरिचमेंट एक्टिविटीज होंगी और जो हम वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें बहुत सारे स्कोप होंगे, बट कुछ के एग्जाम्पल हैं जैसे कारपेंटरी, इलेक्ट्रिकल वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी, मेटल वर्क, लोकल क्राफ्ट, इन सब का भी जिक्र किया जाएगा या सिखाया जाएगा। 4.5 छोड़ दिया है, मैं 4.6 पे जा रहा हूँ क्योंकि 4.5 जो है आपका वो 5+3+3+4 है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 4.6 पे आ जाइए। तो ये एथिक्स और इंडियन नॉलेज सिस्टम और जो इंडिया का प्राचीन हेल्थ सिस्टम था उसको वापस लाने की बात करता है कि शिक्षा में इन चीजों को जोड़ा जाएगा, चाहे स्टोरीज के थ्रू जोड़ा जाए, चाहे लिटरेचर के थ्रू, आर्ट्स के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू, प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, हाइजीन, ये सारी बातें हमारे यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम में थी ही नहीं, राइट। या थी तो बस किसी चैप्टर के कोने में फंसी हुई थी। कोई होम साइंस पढ़ता था तो हम होम साइंस वाले को मानते थे, अरे ये तो होम साइंस पढ़ता है, कितना छोटा आदमी है ये, है ना, या छोटा कोर्स कर रहा है, बट एक्चुअली उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो इम्पोर्टेंट था, है ना। तो वो सारी बातें लाने की बात की गई है। प्लस ये देखा गया कि हमारा जो युवा है जिसको आप आजकल जेन जी और जेन अल्फा कह रहे हैं, उनके अंदर ये इंडियन कल्चर से के प्रति एक प्रेम, सद्भाव या सम्मान में कमी आई। तो एनईपी बात करता है कि इंडियन कल्चर को प्राउड फील करवाना और नॉलेज सिस्टम को फिर से जागरूक के प्रति लोगों को जागरूक करना। चैप्टर 4.7 कहता है आर्ट्स, स्पोर्ट्स और होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें आपका आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन को बढ़ाना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड सोशल स्किल्स को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ये सारी बातें चैप्टर 4.7 करता है। 4.8 कहता है कि स्कूल एग्जामिनेशन में रिफॉर्म किए जाएंगे। 4.8 है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट जो होगा वो एनालिसिस बेस्ड होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा और फ्लेक्सिबल होगा। ये सारा आपको याद रखना है कि असेसमेंट के बारे में क्या कहा गया है 4.8 में। 4.9 करिकुलम शिफ्ट की बात करता है, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। रोट लर्निंग से कॉन्सेप्ट, कंटेंट लोड एंड पैसिव लर्निंग वगैरह वगैरह। Now, what we can do is, if we let me see how many slides are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okay, so we'll have to stop here because otherwise this class will become too long, and I'm sure you guys have to go for some other work also.
So what I'm going to do is I'm going to stop here today. I will continue this class from here only tomorrow. I'll upload this video, and then we will take up questions also, because today we are not able to include questions, right? So questions means MCQs that may be asked in the examination. So we'll take Excuse me, those sir. tomorrow. Vinay, just a minute. So we will take questions and we will complete this tomorrow. Now, if you have any questions, please ask. Yes, Yes, Vinay sir. ji. Actually, I would like to know कि क्या एनईपी में कुछ ऐसा स्पेसिफाई है कि कितने सब्जेक्ट्स एक स्टूडेंट के पास होंगे 9 to 12 लेवल पर? ये क्या ऐसा कुछ स्पेसिफाई है? एनईपी बेसिकली पॉलिसी है। पॉलिसी में जो छोटी बातें होती हैं उन पे बात नहीं है। एनईपी बड़ी बातें कर रहा है, ब्रॉडर बात कर रहा है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो आपका है फॉर टीचर एजुकेशन एंड फॉर स्कूल एजुकेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वहाँ पर स्पेसिफिक्स कुछ हैं, लेकिन एनईपी में नहीं है। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन, ये आई कोर्ट जो हमारा कर्मयोगी चल रहा है, क्या वो भी एनईपी 2020 के बेस पर? दीक्षा, निष्ठा, कर्मयोगी जितने भी ट्रेनिंग चल रहे हैं वो सारे एनईपी से ही मोटिवेटेड हैं, क्योंकि एनईपी ये कहता है कि आपको एक टीचर को साल में शायद 50 आवर्स, कम से कम 50 आवर्स की ट्रेनिंग लेनी है, तो वो सारा उसी पे बेस्ड है। ठीक है सर, थैंक यू सर। Thank you, guys. It's nice to attend your class and Thank you, sir. very helpful. Thank you, Vinay. Thank you, Thank you. Sapna. Thank you. Thank you, sir. Thank Sir, you so much. sir, can you share these slides to us? Yes, of course, I can share. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Sapna. Anybody else? Any other question? Okay, so we will meet tomorrow at 9 p.m. Thank you. Have a good night, everyone.